नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने कम्युनलिज्म इन 1930s डिस्कस किया और उसी एपिसोड के साथ वी काइंड ऑफ रीच्ड द टाइम पीरियड फ्रॉम 1939 to 1945, which is basically the time period during the Second World War. And as we saw in the case of First World War, this World War will also impact the Indian politics and the national movement in certain ways. And today's episode we will talk about that. तो होता यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट taking any suggestions or without inviting any of the Indian leaders to discussion decides to pull India into the Second World War. और Second World War की situation थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट में ऐसे भी अलग है कि अब ब्रिटेन को पता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सुपर पावर which it was during the First World War. First World War में ब्रिटेन की पोजीशन ज़्यादा पावरफुल थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा समझ में आने लगा था ब्रिटेन को कि it will lose its status as the financial superpower, and we will see how it impacts the decisions and how it impacts the national movement. तो होता यह है कि जब हमारे किसी भी लीडर्स के सजेशन को नहीं लिया जाता है एंड इंडिया इज ड्रैग्ड इनटू द वॉर दैट ब्रिटेन इज फाइटिंग, तो the Congress governments in different provinces that we had discussed after 1937's election, they resign, right? And they resign and इसमें गांधी जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था कि ना एक पाई और ना किसी का भाई, कि नीदर वी वांट to spend on the war which Britain is fighting, and nor we want to send any of our people to fight that war, right? So this was a very very staunch stance that a lot of national leaders had adopted. And instead and इसमें ऐसा था कि गांधी जी in response कुछ चाहते थे कि हमें कुछ रियायत मिले और बिना शर्त समर्थन नहीं देना चाहते थे. On the other hand, Jawaharlal Nehru was of opinion that Britain is fighting against the fascist power, that is Germany. और अगर हमने ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं किया, सो दैट विल बी इन अ वे सपोर्टिंग फासिज्म. सो ऑल्दो जवाहरलाल नेहरू वाज इन फेवर ऑफ starting a mass movement, but at the same time he was kind of unsure about it. And then finally you had the socialist and communist parties who and leaders like Subhash Chandra Bose, who thought that the enemy of our enemy is our friend, and therefore they thought that we should take advantage of this situation and उनके जो enemies हैं उनके साथ मिल के हमको एक आंदोलन करना चाहिए, हमको aggressive steps लेने चाहिए and send the British out of India. Although how what approach was to be taken was of like everyone had their opinions, but the general idea was that this was now the time, I think everyone had started feeling, where everyone started feeling that they had to make a final push. तो अब होता क्या है, how does British government respond to this? Is that in 1940, an August proposal, in August of 1940, a proposal is brought by the then Viceroy Linlithgow, and it's also called Linlithgow proposal. और इसमें इस प्रपोजल में बात की जाती है कि वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाएगा, और इसमें यह भी बोला जाता है कि वाइसरॉय की जो काउंसिल है उसमें इंडियंस की संख्या को बढ़ाया जाएगा. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ वॉर कमिटी, है ना, एक वॉर सलाहकार, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, और इसमें people will be added on the basis of recommendation from the Indian people or Indian
रिप्रेजेंटेटिव, भारतीयों का इसमें बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन होगा। अब बात यह है कि कांग्रेस का कहना पड़ता था कि डिफेंस शुड कंप्लीटली नाउ कम इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस, वी शुड बी एबल टू डिसाइड आर ओन डिफेंस पॉलिसी एंड हाउ वी विल डिफेंड आर कंट्री। तो उन लोगों ने ये इस तरीके के लिनलिथगो प्रपोजल को पूरी तरीके से नकार दिया, लाइक रिजेक्ट कर दिया। अगस्त प्रपोजल की एक और बात यह थी कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने जहां खत्म किया था वहां हमने बोला था कि जिन्ना केम आउट विद 2 more डिमांड्स टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि कांग्रेस नहीं कर रही थी और कांग्रेस ने वहां पे से इस्तीफा दे दिया था सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। और उसमें एक डिमांड ये थी कि वीटो पावर दी जाए मुस्लिम लीग को ऑन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ये लिनलिथगो प्रपोजल में, अगस्त प्रपोजल में मुस्लिम लीग को वो वीटो पावर मिल जाती है। अब होता यह है कि अब देखिए ये 1940 में आया लिनलिथगो प्रपोजल, राइट। अब आने वाले 2 साल में और परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी कह रही थी कि अभी हम लोगों को अभी लड़ाई करनी चाहिए ब्रिटिश के अगेंस्ट, ये उनका स्टांस था 1939 के अराउंड। अब 1941 में क्या होगा कि हिटलर विल इन्वेड रशिया। अब जैसे ही हिटलर इन्वेड करेंगे रशिया को, सो the Russian leader Stalin will ask all of the communist socialist parties who were taking their instructions from Moscow to not now to start cooperating with British. तो इसलिए अब 1942 तक आते आते, विच इज मार्च ऑफ 1942, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज आर ऑलरेडी नॉट ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। दे आर इन फैक्ट थिंकिंग नाउ कि अरे ब्रिटेन तो रशिया का अलाय बन के खड़ा हो गया है, इसलिए अब हमें ब्रिटेन के साथ खड़ा रहना चाहिए, राइट। सो दैट इज द चेंज इन सिचुएशन। द अदर बिट इज दैट जापान हैज, है ना, ऑल्सो एंटर्ड द वॉर। तो अब जापान के वॉर में एंटर होने के बाद प्रॉब्लम ये हो गई है कि साउथ ईस्ट एशिया में से ब्रिटेन के पांव एकदम उखड़ चुके हैं, है ना। मतलब जापान बर्मा पे भी अपना अधिकार जमा लेता है, मतलब वहां तक पहुंच जाता है। तो अब ब्रिटेन को डर है और इसलिए जो अलाइज होते हैं, जो ब्रिटेन को अब सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई नहीं, तुम्हें कुछ तो करना होगा ये इंडिया वाले डिमांड्स को लेकर। सो दैट्स व्हाई नाउ चर्चिल अंडर ऑल ऑफ दिस प्रेशर सेंड्स अ क्रिप्स मिशन इन मार्च ऑफ 1942। और इसमें क्या प्रस्ताव रखा जाता है कि एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को आफ्टर द वॉर, एंड इंडिया कैन ऑल्सो चूज टू सेपरेट and form and go completely independent out of that dominion status. दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का फॉर्मेशन किया जाएगा टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको गांधी जी ने एक पोस्ट डेटेड चेक बताया, है ना, कि ये सब वॉर के बाद वाले सब प्रॉमिस वगैरह तो ठीक है, अभी क्या कर रहे हो टाइप। सो उसको पोस्ट डेटेड चेक बताया और किसी जर्नलिस्ट में ने उसमें ऐड कर दिया बाय एन ऑलरेडी फेलिंग बैंक, क्योंकि अब ब्रिटेन की हालत क्लियरली वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद, मतलब एज एन इकोनॉमिक पावर भी गड़बड़ होने वाली थी, राइट, नॉट एज बिफोर। गड़बड़ का मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला था, बट कहने का मतलब है कि पहले के मुकाबले अब कमजोर होने वाली थी, राइट। और क्रिप्स मिशन ने फिर आप देखेंगे हर प्रपोजल में, लिनलिथगो प्रपोजल में वीटो पावर दे दिया मुस्लिम लीग को, विच इज अ स्टेप टूवर्ड्स अगेन अब स्टेप टूवर्ड्स पार्टीशन। अगेन क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि वो एक ऑप्शन बोलते हैं जिसे लोकल ऑप्शन। क्रिप्स मिशन इंट्रोड्यूस्ड अ लोकल ऑप्शन, और लोकल ऑप्शन का मतलब क्या कि इफ अ प्रोविंस डजंट अग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और बेसिकली उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। सो दिस इज अगेन kind of fanning the fires of that separatist tendency of that separation। और क्रिप्स मिशन जब ये ऐसा करता है तो फिर से एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। जैसा मैंने कहा, गांधी जी इसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन अगस्त ऑफ 1942, कांग्रेस टेक्स अ रेजोल्यूशन टू स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट तक आते आते सिचुएशंस बहुत
खराब ऐसी भी हो चुकी हैं कि आप देखेंगे कि 1943 का जो ग्रेट बंगाल फेमाइन है, उसके मतलब उसकी सिचुएशन अब उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेट होते जा रहा है। कैसे सेट होते जा रहा है कि एक स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी होती है। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब कि जैसे जैसे एनिमी आपकी टेरिटरी में आते जाता है, अब सारी जो खेत खलिहान है उनमें आग लगा देते हैं, आप जितने फूड रिसोर्सेज है उनको हटा देते हैं वहां से, सो दैट एनिमी कैन नॉट गेन फ्रॉम योर रिसोर्सेज। तो यही स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी ब्रिटिश अपनाते हैं व्हेन जापानीज ऑक्यूपाई बर्मा। और वो क्या करते हैं कि जितने बंगाल की बॉर्डर पे जितने फिशिंग बोट्स हैं, जितने आपके जो जिन जिन बोट से बेसिकली खान पान और फूड का अरेंजमेंट होता है ना, फिशिंग बीइंग वन ऑफ द की सस्टेनेंस फॉर फूड, तो वो सारे बोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिमिलरली जो खाद्यान्न होता है, जो आपके फूड ग्रेन्स होते हैं, उसके ट्रांसपोर्ट पे भी ब्रिटिश बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं। उनको उनको अलग ले जाकर अपने सैनिकों को अपने वॉर एफर्ट्स में लगाने के लिए उनको डाइवर्ट किया जाता है। तो जिसके कारण से आने वाले एक साल में अब बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। इट इज कॉल्ड ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 विच काइंड ऑफ क्लेम्ड अबाउट 1.5 to 4 मिलियन पीपल। तो आप देख रहे हैं ये कि कहने का मतलब यह है कि अभी जो कंडीशंस हैं वो इतनी ज्यादा मतलब बुरी हो चुकी है लोगों के लिए, पॉपुलेशन हमारे हमारे लोगों के लिए, और बहुत ज्यादा एंगर भी है। देन जब बर्मा ऑक्यूपाई करती है जापानीज आर्मी, तो ब्रिटिश आर्मी अपने अपने लोगों को लेकर निकल जाती है, नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द इंडियंस हु आर स्ट्रैंडेड देयर एंड दे आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द जापानीज ऑक्यूपेशन, जो फोर्सेज होती है उनकी मर्सी पे छोड़ के आ जाते। तो ये सारी घटनाएं जो हैं दैट हैज गिवन राइज टू इनफ एंगर। सो जब 8 अगस्त 1942 में जब बॉम्बे सेशन में डू और डाई और क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन लिया जाता है, 9 अगस्त को ही सारे मेजर लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। बट अब होगा ये कि without even these leaders, without these leaders also, a lot of agitation and a lot of resistance will be shown by people। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी था क्योंकि ऐसा कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम वर्गीय हित शून्य हो गए थे। शून्य हो गए थे मतलब लोगों ने अपने डिफरेंसेस को भुलाकर इस मूवमेंट में अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो 9 to 14 अगस्त मुंबई में बहुत ज़्यादा अशांति रही। क्विट इंडिया मूवमेंट के जो प्रोसेशन थे, धरने थे, वो सब शुरू हुए। फिर 10 to 14 अगस्त में कलकत्ता में अशांति रही, और इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखा गया बाय 15 अगस्त वाज इन द फार्मिंग और फार्मर डोमिनेटेड एरियाज। फार्मर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लिया, और कांग्रेस के जो सपोर्टिंग दल थे, जैसे आप फॉरवर्ड ब्लॉक समझ लीजिए, फिर अखिल भारतीय कृषि सभा समझ लीजिए, ये सारे दलों ने भी इसमें काफी पार्टिसिपेट करा। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेजर लीडर्स वर पुट इनटू जेल इमीडिएटली, देयर वर अ लॉट ऑफ अदर लोकल लेवल लीडर्स, लोकल लेवल पे लोगों ने, फार्मर्स ने चीज़ें अपने हाथ में ली। और हम देखते हैं कि बिहार में भोजपुरी जो रीजन है, और यूनाइटेड प्रोविंस का भोजपुरी रीजन, बलिया, गाजीपुर, मिदनापुर, एंड लार्जर लेवल पे अक्रॉस इंडिया देखें तो बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फार्मर जो ग्रुप्स थे उन लोगों ने इस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करी। And the government, which was already fighting in the World War II, started like ran an extremely oppressive, they kind of tried to ran a very very oppressive agenda
जिस तरीके से इन इन मूवमेंट्स को ऑप्रेस किया गया, मतलब ऐसा था कि जगह जगह सैनिक और रेजिमेंट्स को ट्रेन में बैठा कर ले जाया जाता था और वहां पर गांव गांव में जाकर या तो दमन जो जो हमारे जो प्रोसेशन थे या जितने वहां पर रेजिस्टेंस हो रहा था लोगों का, या तो उनको मार दिया जाता था या खाली गांव को खाली करवा के सेना आगे बढ़ जाती थी। बट फिर भी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या जो गांव के क्षेत्रों में जैसे ही इन चीज लाइक इनको ऑप्रेस किया गया, हम ये भी देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम कि फिर इंटेलेक्चुअल्स और स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड ऑलमोस्ट टेकिंग द लीड ऑन दिस एंड ऑलमोस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर से इसको आगे बढ़ाए रखा। फिर आम जनता की भागीदारी से भी हम अगर समझना चाहें तो हमें यह पता चलता है कि डिस्पाइट बीइंग टॉप लीडर्स बीइंग इन जेल, बहुत कॉमन पॉपुलेशन ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विमेन एंड स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस। लेबर साइड पे हम लोगों को थोड़ा सा पार्टिसिपेशन फ्रैक्चर्ड दिखाई देता है, और वो इसलिए भी क्योंकि हमने देखा कि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी डिड नॉट get involved in this, but we do see that in cities like Jamshedpur, Pune, Ahmedabad, there was worker participation, there were worker strikes, there was worker resistance. But again, as I said, labor participation in Quit India movement it was not as good as it was seen from farmers, from students, from women, from across the country. Or Muslim League kind of encouraged its supporters to oppose the movement, right? क्योंकि Muslim League now was completely against what Congress was doing, and again, as we talked about it, that Jinnah completely changed the way he was thinking about it. Jinnah पहले communal नहीं थे, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। जब शुरुआती में हमने 1920 के आसपास की बातें जब कर रहे हैं, तब जिन्ना ये कम्युनल आइडियाज लेकर नहीं इतने स्ट्रांग थे, और अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। अब वो बहुत सांप्रदायिक विचारधारा से ग्रस्त हो गए थे, और उसी के चलते मुस्लिम लीग आस्क्ड इट्स सपोर्टर्स टू अपोज द मूवमेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात ये जाननी बहुत बहुत जरूरी है कि अब अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस एंड ओनली इंडिपेंडेंस बिकेम द प्राइमरी, द फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ every single leader in the country. Quit India movement के बाद there was no looking back, and the only conversation that was to be had was about the change in power, है ना। अब अगर आप इसको ब्रिटिश साइड से भी देखते हैं थोड़ा, राइट, इसको ब्रिटिश साइड से देखने का मतलब यह है कि देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने साउथ ईस्ट एशिया में अपने वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश had already created an army of 25 lakh soldiers. एंड आप समझ रहे हैं ना कि अभी ब्रिटेन, इंडिया की आर्मी हैड बिकम प्रॉब्ली मोर इन नंबर्स देन ब्रिटेन की खुद की आर्मी। तो सडनली आपने एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट कर दी जिसके कारण आप ही कमजोर पड़ गए। तो ब्रिटेन वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट ऑलरेडी। जैसा दूसरी बात मैंने कही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन विल कम डाउन एज अ फाइनेंशियल पावर, राइट। जर्मनी और यूएस अब आगे बढ़ के मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पावर्स बन के उभरेंगे और ब्रिटेन थोड़ा नीचे खसक जाएगा। और तीसरी चीज ये थी कि वॉर एफर्ट में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, एंड डिस्पाइट चार्जिंग इंडिया विद द होम चार्जेस, जिसके हमने पुराने एपिसोड्स में एक बार बात करी भी है कि क्या थे ये होम चार्जेस, ब्रिटेन एक्चुअली बिकेम द बोरोअर फ्रॉम इंडिया, नेट बोरोअर बन गया। तो ये सारी चीजों को जब हम अकाउंट में लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू the first and topmost priority was
नाउ गेटिंग द फ्रीडम कि अब बस आप यहाँ से छोड़ के ही जाओ. वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन. वी वांट पावर इन आवर हैंड्स. वी वांट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, सब कुछ हमारे हाथ में, हमारी इकोनॉमी हमारे हाथ में होनी चाहिए. एंड नाउ दिस इज द टाइम टू गो, रिटर्न एंड लीव इंडिया. आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं यहीं पर पॉज लूंगा. अगले एपिसोड में अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस, बेसिकली पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है, एंड अबाउट इंडिपेंडेंस एंड द हार्श रियलिटी ऑफ पार्टीशन. हमने यहां इस एपिसोड में भी देखा हर जगह पर, फ्रॉम लिनलिथगो प्रपोजल, फ्रॉम क्रिप्स मिशन, हर जगह पर वो एक कुछ ऐसा स्टेप था विच टुक अस अ स्टेप क्लोजर, और कोई ऐसा क्लॉज था विच टुक अस अ स्टेप क्लोजर टू पार्टीशन. And that is what we will continue to talk about in the coming episode. Post World War II क्या होता है and what happens ultimately in as independence and partition. ये दोनों चीज़ें अब crystallize होंगी. सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Until next episode, जय हिंद.